Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Uh, Evening, so, ma'am. good evening. New student has joined. Yes, Hiba. ma'am. Okay. Arno, make me host so I can able to share PDF. Ma'am, how to make yours? I have not done. Okay. So you can able to make me host now. No, ma'am. You don't know how to make host. Okay, wait. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Ah. Where is Harsh and Harsh has not joined. Harsh and Vyom. Both of them have not joined. Your lecture was there previous this lecture. What, ma'am? Your lecture was there previous this lecture. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, Because I was trying from what, ma'am? 4:20. I was Ma'am, we trying were from trying 4. to connect, but it was showing that the Showing that you meeting were has timed out. another meeting. No, it is showing that Yeah, same the problem. host is having another meeting in progress. Yeah. Same problem was occurring with me also. I was also trying from 4:18, I think so. So 2 minutes before only I usually join, but they were saying like host has an another meeting. After that, Okay, so when we will start. I was waiting, then when I joined, ME main was there first. Then they told that wait, ma'am will join. At that time, the meeting was ended for me also. Then again I joined. Okay, acha, fine, no problem. So we will start with the lecture. Harsh is only left, I think so. Yes, So ma'am. first, please everyone keep your camera on. Only Navneet has kept camera on. Rest all also keep camera on. Deepa, you are from which school? Ma'am, the Podar International. Okay. So we will start with the new topic, okay, today. So that topic is nervous system. So wait, I will share PDF with you. So before starting with this chapter, previous chapter which we covered was animal tissue. Kingdom So Hiba, classification. you No, like ma'am, it you is know kingdom classification. detail. What? Kingdom classification, starting introduction. Yes, sir. No, but no, But I'm talking about the chapter which we covered. Okay. Cover. So Yes, ma'am. Hiba, you Animal tissue. animal yeah. tissue. So Hiba, you know the about animal tissue. Like previous this have anyone taught you animal tissue in school or else? Ma'am, in school I learned and my mom also taught me. Sorry. Okay. Okay, so you do one thing today. You just go through with the animal tissue chapter. Okay. In next lecture, if you will have any doubt, so you ask me in that lecture. I will explain your. I will clear your doubt. Okay. Okay, ma'am. You try to study like you try to go through with the chapter. If you not understood any topic, I will explain for you. Okay. Okay, ma'am. Now you focus on the nervous system, which is going to come in everyone exam. So we will start with this chapter. Wait, I will start with I will screen PDF. So before this, have you done revision of an previous lecture, like previous chapter, animal tissue? I'm Yes, talking to ma'am. an Harsh and Arnav and Yes, ma'am. Ma'am, I Navneet. already told yes.
Yeah, but what about Arnav and then Harsh? Harsh has not joined also, I think so. Vyom is there. Yeah, but you Arnav and all Vyom. has done revision, Yes, ma'am. or else you just coming and attending the lecture. If between I will ask any question, then you have to tell Yes, me. ma'am. Okay. So we will start with this. I think so. Ma'am had sent me the PDF of your textbook. Yes, ma'am. I've sent all the from the chapter Okay. You, after the yeah, you symptom what? classification. Yeah, but Bio you what TB. have you typed the RAM? Bio TB. Okay, it Bio is there. TB. Yeah, that only. So before starting with nervous system, uh, tell me what is nervous system and where it is present and what is the function of a nervous system. I have taught this in previous lecture, that is animal tissue. So I Animal tissue. like, yeah. So I expect that you should give me answer of an nervous system. What is basically nervous system? What all things are present in nervous system? And what is an axon? And what is an dendrites? And axon is covered with which kind of a sheet? So just give an short introduction to an new student. Okay. So she will also understand little bit thing. Okay, ma'am. So who will now Navneet, you can able to explain nervous system? Yes, ma'am. Yeah, but I will show you the diagram, or or else normally just say what is nervous system where it is present. No need to Yes, ma'am. explain diagram. I will explain them. The nervous tissue is made up of two type of cells. The first cell is nerve cells and the glial cells. Um, the nerve cells are also called neurons, and the neurons are the main cells. Neurons are the main cells of the nervous tissue, and the glial cells help to protect them, help to protect the neurons and support them. The structure of a neuron is like a neuron is elongated, and it is made up of two parts, which are body and axon. One, the cell body or the cell body or the cyton contains Arno, cytoplasm. you can help to Arno, you can help to Navneet. No problem. Yes, ma'am. Cytoplasm from the cell body, and they extend like Nucleus. hair-like dendrites, hair-like dendrites called a single Hair-like axon. extensions called dendrites. Yeah, hair like extension. Hair-like extensions called dendrites. Okay, so fine. I will start with this chapter. So before starting with this chapter, we will start with an introduction that all living organism, which is an cellular, multicellular. Unicellular means single cell. So what can be the example of an unicellular? Amoeba. Amoeba is the example of an unicellular. Why? Because amoeba has only single cell. Multicellular, many cells present. It is known as multicellular. Perform certain life processes in order to be alive. So in unicellular organism, all life process take place within the boundary of a single cell, and in multicellular, the body is made up of numerous cells. So for example, multicellular, which can be of our body is made up of multi cells. So that cell be RBC, WBC, platelets. Okay, in blood, these all cells are accumulated. So our body can be the example of multicellular. Unicellular में क्या होता है? सिर्फ सिंगल सेल्स होते हैं. मल्टीसेल्युलर में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं. Then those organ system perform different function. The body act as an integrated system. Integrated system means क्या? हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स है. दैट इज मल्टीसेल्युलर सेल, सिंगल सेल नहीं है. इसके लिए हर एक बॉडी का ऑर्गन अपने जैसे काम करेगा. फॉर एग्जांपल हार्ट. व्हाट इज एन रोल ऑफ एन हार्ट? द हार्ट विल डू दैट काइंड ऑफ एन वर्क. And kidney, then kidney will do the filtration like in work. So kidney will do that type of work. Similarly, lungs will pass, like lungs will supply food which will. Lungs will take carbon. So now it is visible, audible.
नो मैम, बीच में ब्रेक हो रहा Ma'am, है। your voice is मैम आपका cracking. आवाज यस मैम बीच में ब्रेक हो रहा है। Okay. Okay. So then, now I'm audible, na? नो मैम नॉट प्रॉपर Wait. अब आ रही है बराबर से आवाज? यस मैम Okay. So then what I was okay. Then the Lungs. working together of an organs and organ system of the body is known as coordination. See, coordination means क्या? Together working, coordinate करना. हम कौन से भी काम में coordinate करना बोलते हैं, मतलब क्या? So we making all the organs together and then we coordinate with the work and we do that work. Coordination मतलब coordinate करना. Then all the organs of the human body are under the control of two body system. That is which kind of an two body system? ये याद रखना है, very important. I will ask this question कि दो control human body के organ कौन से है जो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं? विच इज दैट ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं? नर्वस दो ऐसे कौन से सिस्टम है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम हम related to nerves, सिस्टम जो भी nerves. हाँ, I'm explaining it. So nervous system means related to nerves. Endocrine system means related to hormones. जो hormones हमारे body में होते हैं वो that come under endocrine system. Then the nervous systems deal with the nerves coordination of an body, whereas endocrine system deals with chemical coordination of an body. Now chemical coordination means क्या? Hormones is a type of an chemicals जो हमारे body से हम release करते हैं chemical. There are many kind of in chemicals which are in our body that are known as hormones. ठीक है. Endocrine system एक part है जो hormones के detail में study होती है, that is. So hormones is nothing but the type of in chemicals which we produce in our body. ठीक है. यस मैम For example, hormones can like active when we eat any kind of in food, और हमारे system में अगर कौन सी चीज हम लोग ने खाई तो उसमें adulteration दिखता है. For example, 1 month हो गया, फॉर एग्जाम्पल 2-3 months हो गया हम लोग ने नॉनवेज नहीं खाया और अचानक से हम लोग ने नॉनवेज खाया, सो हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शन हो गए, हैंड्स में रैशेज आते, कभी कभी रेड रैशेज बॉडी पे. यस मैम हाँ, सो वो रैशेज आने, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हमारे बॉडी में से, ऐसे कुछ तो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे जो हम लोग के लिए सेफ नहीं है. ठीक है. So that the rashes is because chemical which is producing from our body. So that is only the endocrine system. Then nervous system. Harsh has joined or not? Can anyone check? नो मैम, नहीं आया. No, ma'am. नो मैम Okay, fine. Okay. New student जो join हुए उनका नाम क्या है? I forgot her name. Hiba, ma'am. Okay, so are you able to understanding? Yes, ma'am. Okay, if you feeling like the lecture is going fast, or else because rest all students are used to me like many lectures has happened, so they all will understand, they will ask me free, like they always ask me in between the lecture that this sentence I not understood, so please you can also ask me so I can able to understand कि कितना तुम लोगों को समझा. ठीक है. If you not understood, you can pause me and you can ask me like, madam I not understood this, please repeat again. I will repeat again. Then the nervous system. All living organisms respond to different changes take place in their surrounding. The changes may be either internal or external. Any changes that is internal, external take adult, the activity of a living organism is known as stimulus, and reaction shown by the living organism to the stimulus called response. मतलब क्या? Stimulus मतलब क्या? बाहर से, like इन लोगों ने क्या बोला है, सराउंडिंग से डिफरेंट चेंजेस होता है सराउंडिंग में with respect to organism, with respect to human being. कुछ चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में तो हम लोग उसको स्टिमुलस बोलते हैं, और हम लोग को ह्यूमन बॉडी को कुछ हम लोग को रिएक्शन लगा, हम लोग के रिएक्शन में कुछ चेंजेस हुआ, मतलब हम लोग के बॉडी के सेल्स में कुछ रिएक्शन चेंजेस हुआ तो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ फूड खाते हैं तो हम लोग को उसका टेस्ट समझता है,
देन अगेन हम लोग किसी ने आवाज दिया तो हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, हम लोग उनको रिस्पॉन्ड देते। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एन रिस्पॉन्ड। एंड स्टिम्युली मतलब हम लोग को कुछ बाहर के सराउंडिंग में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, उसको स्टिम्युली। स्टिम्युली और रिस्पॉन्स में डिफरेंस समझ रहे हैं? यस मैम। हेलो पक्का सबको समझ रहे स्टिम्युली और रिस्पॉन्स में? यस मैम। हेलो मैम। हाँ बोलना, मैं सुन रही हूँ। मैम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे मैम बोल रही है, बोला था ना कि मेरा लिंक लेक्चर में तो चालू मस्त है। आ रहा है, पीपल लिंक में मस्त आ रहा है करके तुमने और हर्ष ने बोला था ना मैम। उन दोनों माय ने वॉइस बोला इज कि नॉट ऑडिबल टू। आफ्टरनून। नो मैम, इट्स मैम क्लियर। मैम वो लोग का नेटवर्क इशू रहा। पीपल लिंक में ऐसे ही रहता है मैम, इसलिए मैंने भी जियो फाइबर लगवा दिया। Yeah. Okay. So we will continue with the lecture. I don't know what, I think so. It's his issue, I think, in the network, because from उसका my इशू side ही I'm है। audible to यस मैम। you. Yeah. Okay. So then, हाँ where मैम, I हाँ was, मैम, अभी आवाज आ the रहा है। nervous system allow. आवाज आ रहा है अभी। वाईफाई ऑफ Okay, कर दिया okay. था मेरी बहन The ने। nervous system. Okay, fine. The nervous system allows us to observe, interpret, and react to the external and internal stimuli. Because of this nervous system, हम लोग को कुछ समझ रहे हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स है, तो हम लोग कुछ खा रहे हैं, हम लोग को किसी ने बुलाया, तो ये नर्वस सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हम लोग को रिस्पॉन्ड देने आ रहा है। अगर माइलिनेटेड शीट एक्सॉन के ऊपर कवर नहीं होता, तो हम लोग को किसी ने बोलते थे कि डू दिस वर्क, चलने जाओ, और एल्स बोलते हैं कुछ होमवर्क करो, हम लोग को कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हमारे जो समझ में ब्रेन का नहीं सिस्टम, हाँ, ब्रेन का जो माइलॉन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होता था। दैट्स व्हाई व्हेन द स्टिमुली रिसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन इज ट्रांसमिटेड वॉइस टू द नर्वस ब्रेक हो रहा सिस्टम। है और आपको मेरा हाँ आवाज मैम। भी 2 मिनट के बाद सुनाई दे रहा है। अरे मैम आवाज बहुत एकदम जोर से आ रहा है। मेरे को तुम लोग का भी वैसे ही आवाज आ रहा है। मैम मेरा तो हेडफोन्स बहुत पास है और मैं धीरे से बात कर रहा हूँ हाँ मैम, क्योंकि ओके, बहुत ही पास है, मेरे पास ब्रेक ही। हो रहा है आवाज। अब आ रही है प्रॉपरली? यस हाँ मैम। मैम। मैम यस मैम, आ रही है। Okay. The stimulus received by the sense organ is transmitted to the nervous system, which process the received information and trigger a response. Means के stimulus मतलब सराउंडिंग का, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है। देन नर्वस सिस्टम हम लोग को सिग्नल दे रहा है कि यस यू हैव टू डू दिस थिंग, यस यू हैव टू लिसन दिस थिंग। कुछ भी हम लोग को रिस्पॉन्स देना है, वो स्टिमुलस से मिल रहा है। याद रखना डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। होल टॉपिक इज अबाउट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब हम लोग को बाहर सराउंडिंग में जो दिख रहा है वो, रिस्पॉन्स मतलब हम लोग स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। ठीक है? यस मैम। यस मैम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस मेक अप द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 3 चीजों से बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। हाँ, so what this all, where actually this all present, like we will go move on, like then we will able to see where exactly spinal cord present and how they linked with brain. Then network of the specialized nerve cells from the unit of the nervous system. Those highly specialized cells are called neurons. Neurons are the specialized cell because neuron में सब nerve cell present है, and glial cells also. The human brain contain 100 billion न्यूरॉन। जस्ट इमेजिन एक ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स मीन्स व्हाट, इन दैट नर्व सेल्स होंगे एंड ग्लाइल सेल्स होंगे। It generate nerve impulse or electrochemical signal from the stimulus that are received and transmit them to another part of the body. मैम मतलब आपका वॉइस फिर से ब्रेक हो रहा है। हाँ मैम। एक सेकेंड, मुझे एक्चुअली तुम लोग की भी बीच में वॉइस एकदम ब्रेक होने से आ रही थी। अब आ रही प्रॉपर्ली? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। Okay, fine. So electrochemical signals means what? These generate impulse. फिर से गया। फिर से ब्रेक हो रहा है? हाँ यस मैम। मैम। Now
now voice is coming. नहीं मैम, पहले नाउ का सुनाई दिया, उसके बाद का वो पूरा ब्रेक होके फिर आया। Wi-Fi connection is also proper. मैम मेरा तो फुल है, 132 KB पर सेकेंड आ रहा है, वाईफाई के पास ही बैठा हूँ। अभी वाईफाई के बाजू वाले रूम में बैठा हूँ। मैम भी वाईफाई के पास ही बैठा। मैम आप मैं एक बार चेक करिए, कुछ बार वॉचर लगाना पड़ता है जियो मोबाइल में। डेटा भी ऑन रखा है, सब फुल है, वाईफाई भी फुल है। हेलो, यस मैम, यस मैम। अब आ रहा है आवाज? ब्रेक करके आ रहा है पर सुनाई दे रहा है ठीक से, और समझ में आ रहा है। हाँ, Okay. So electrochemical signals from the stimulus that are received and transmit them to other parts of an body means what? Stimulus से जो response हम लोग को आ रहा है, stimulus हम लोग को जो मतलब रिएक्शन और सिग्नल जो भेज रहे उस पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। और ये जब स्टिमुलस हम लोग करते हैं हमारा ब्रेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्ड हमारा ब्रेन स्टिमुलस रिसीव करते हैं, उसको वो ट्रांसमिट होते हैं हर एक पार्ट से बॉडी पे, ठीक है, ये समझ रहे ना? यस मैम। यस मैम। द नर्वस सिस्टम क्लियर है? नर्वस सिस्टम का पैराग्राफ यस मैम क्लियर है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के डिफरेंस समझ रहे? यस मैम। Okay, if I will tell to explain, Arnav, explain me the difference between what is stimulus and what is response. Explain me. हेलो एक बार फिर से बोलिए, ब्रेक मैम, होके किसका आया है, आवाज सुनाई नहीं नहीं आ दिया ठीक से, आपका ब्रेक मैं होके बोली आया कि था। डिफरेंस बिटवीन मेरे को बताओ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। मैम, किसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रेस्पॉन्स, हाँ, स्टिमुला के रेस्पॉन्स के बारे में बोलना है। मतलब स्टिमुलस क्या है एंड रिस्पॉन्स क्या है। ओके, उनका रेस्पॉन्स। यस मैम। हम रिस्पॉन्स मतलब जैसे आपको किसी ने टीचर से ये बोला, कुछ तो बोला तो हम लोग को मतलब जल्दी से सुना है, तो स्टिमुलस मतलब जैसे हम लोग को सब कुछ फील होता है, जैसा हम लोग क्या खाना खाते हैं वो सब कुछ ऐसा। ओके फाइन, मैम वी आपकी विल मूव आवाज ऑन विद द, देखो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, ब्रेक हो रही है। हाँ, वापस ब्रेक हुआ। हेलो, यस मैम। अब आ रहा है आवाज? यस मैम, आ रहा है। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन कौन करेगा मेरे को? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन। हेलो हेलो, मामा न्यूरॉन इज elongated cell made up of two parts, वो बोलना है। हाँ, स्ट्रक्चर देख के एक्सप्लेन करना है। लाइक ओके, आई विल एक्सप्लेन, बट किसका तो वॉइस आ रहा है वो म्यूट करना। मैम मेरे वाले से नहीं। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम अभी बराबर है। अब बराबर है? हाँ यस मैम। मैम, लगता है वो सब लोग ने अनम्यूट किया इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, यू डू वन थिंग, ऑल अनम्यूट करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्ट्रक्चर, देखना सुनाई दे रहेगा प्रॉपर। सब लोग अपना माइक अनम्यूट करना। यस मैम। मैम किसके प्लीज यहाँ से अनम्यूट तो सब लोग बैकग्राउंड अपना। म्यूजिक आ रहा है। हाँ, आई थिंक सो दैट ओनली, प्लीज कीप माइक अनम्यूट। हम अनम्यूट पे ही स्ट्रक्चर है। ऑफ ए न्यूरॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, सेल बॉडी दिख रहा है पहले, तो सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस मीन्स व्हाट? सेल में न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स वो सेल लिविंग सेल है, ठीक है।
When cell containing nucleus, it means वो cell living cell है. So that's why the neuron structure contain nucleases. Then dendrites. Dendrites are elongated structure, branches like. So dendrites का काम क्या है? Dendrites एक्सॉन टर्मिनल को कनेक्ट होगा और ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन. Second neuron. ठीक है. द हेल्प Yes, ऑफ ma'am. सिनेप्सिस सेल. यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर एक्सॉन न्यूरॉन और डेंड्राइट्स कैसे कनेक्ट हो गए. Yes, यस ma'am. मैम. यस मैम. मैं आपको एनिमल टिश्यू में लास्ट टॉपिक था उसमें यही एक्सप्लेन कर रही थी कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स सेल. सिनेप्स सेल क्या करेगा? वो दोनों को अटैच करेगा और सिग्नल पास करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को. विच इज हाँ ओके. सो ये मैं मतलब थोड़ा 5 एक्सप्लेन करके. तो एक जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो सेकेंड न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे. ऐसे इनकी चेन बनती जाएगी. ये इन लोग ने 2 ही स्ट्रक्चर देखा है. ऐसे उन लोग का 3, 4, 5 मेनी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करेंगे अटैच से और वैसे ही वो ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल. अभी देन एक्सॉन का लेंथ कितना तक एक्सटेंड हो सकता है? ओनली 1 मीटर. 1 meter. ठीक है. 1 मीटर. हाँ 1 मीटर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकते एक्सॉन. देन एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड शीट होता है जो फैटी एसिड उनमें कंसिडर होता है. अभी जब एक्सॉन माइलिनेटेड शीट कवर करता है तो ट्रांसमिट होता है जो इन्फॉर्मेशन वो फास्ट ट्रांसमिट होता है इन्फॉर्मेशन. वाई माइलिनेटेड शीट एक्सॉन के ऊपर कवर होते हैं? बिकॉज जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कैरी फ्रॉम 1 न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन Second उनका neuron. इन्फॉर्मेशन कैसे जा रहा है? फास्ट जा रहा है. Fast. हाँ विद द हेल्प ऑफ सिनेप्सिस सेल. तो जब कोई पूछेगा कि माइलिनेटेड शीट एक्सॉन के ऊपर कवर क्यों करते हैं? बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो है नर्वस के पास वो एक नर्वस से दूसरे नर्वस को ट्रांसमिट हो रहा है इसके लिए. ठीक है. स्पीड इंक्रीजेस. डेंड्राइट्स या एंड देन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल एक दूसरे को कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स सेल. सिनेप्स सेल से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन इससे ट्रांसमिट होता है. ट्रांसफर करते हैं. या तो स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली समझा. Yes, ma'am. So now we need to read the structure of a neuron. Start reading structure of a neuron. Read kariya, explain. No, read. Okay, ma'am. The neuron has a main cell body called cyton. The cyton consists of a central nucleus. Many fiber-like projections arise from the cyton. They are called dendrites. Dendrites receive nerve impulses from the receptors of the sensory organs or from other neurons. Axon is a long process arising from the cyton. It transmits the nerve impulses from the cyton to the effector cells, muscles, glands, or organs of the body. The axon of one neuron lies very close to the dendrite of the other neuron. The point of contact where a neuron connects with other neuron or an effector cell is called the synapse. Synapse. Synapse or synapse. You can talk synapse also, no problem. You can pronounce synapse. The axon of one neuron transmits the nerve impulse to the dendrite of the other neuron at the synapse. When an impulse arises at a synapse, a small amount of chemical substance called neurotransmitter is released, which helps in the passage of the nerve impulse to the next neuron. Okay. So when this synapse is released between the two nervous system, then what happen? Neurotransmitter. With the help of a neurotransmitter, एक नर्व के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकेंड नर्व के पास इन्फॉर्मेशन पास होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. बट न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जब जनरेट होते तभी सिनेप्स सेल डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल के बीच में लोकेटेड होते हैं. तो तब सिनेप्स सेल क्या होता है? सिनेप्स सेल कंसिस्ट ऑफ द केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होता है तभी इंफॉर्मेशन पास होता है एक नर्व से सेकेंड नर्व के पास. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सबको समझा? Yes, ma'am. जो नई स्टूडेंट जो है उनको समझा स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन? हाँ मैम. डाउट है कोई स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में? मैम मुझे वो साइनाप्स का नहीं समझे. Okay, see.
सिनेप्सिस सेल और साइनेप्स सेल, सिनेप्सिस सेल यूजुअली बोलते हैं। सिनेप्सिस सेल्स क्या होता है, एक नर्व से दूसरे नर्व के पास जो इन्फॉर्मेशन पास होता है उसके लिए सिनेप्सिस सेल यूज होते हैं। सो डेंड्राइट जो दिख रहे हैं, डेंड्राइट्स, मैम यस मैम। तो डेंड्राइट, हाँ, तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिनेप्सिस सेल। तो सिनेप्स उन लोग क्या करते हैं, एक नर्वस के पास जो इन्फॉर्मेशन होगा, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वन नर्व्स कैरी, वो ट्रांसफर होगा सेकेंड नर्व्स के पास। ओके, यस मैम। आप भी समझ रहे हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एक नर्व से सेकेंड नर्व के पास। आप भी समझा? हेलो, यस मैम यस मैम। सो पार्ट्स ऑफ ए नर्वस सिस्टम, अभी स्ट्रक्चर हो गया नर्वस सिस्टम के। अभी व्हाट इज एन पार्ट्स ऑफ ए नर्वस सिस्टम? सो नर्वस सिस्टम के पार्ट दो टाइप में डिवाइड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्टार्ट करने से पहले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, कहाँ पे लोकेट होता है, उनका रोल क्या है, वो देखते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल सेंटर्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी दैट ऑकर इन द बॉडी। फुल आउट बॉडी में जो हम लोग का एक्टिविटी चलता रहता है, वो कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल नर्वस सेंट्रल सिस्टम नर्वस का। सेंट्रल नर्वस सो द सिस्टम स्टिमुलस, हाँ, द स्टिमुलस रिसीव बाय द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन से ऑर्गन को हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं? स्किन आईज Ears, नोज ईयर्स skin, टंग, टंग कैन ऑल्सो बी द सेंस ऑर्गन ना? टंग eyes. या हाँ, सो और इज सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये सेंस ऑर्गन है, जो भी सेंस ऑर्गन है वो रिसीव, वो लाइक हम लोग का जो भी सेंस ऑर्गन है मैम वो आपका किसके आवाज पास, ब्रेक हो रहा है। आवाज में वापस ब्रेक हो रहा है। वापस से ब्रेक हो रहा है। यस मैम हाँ, वेट वेट, अभी आ रहा है? यस मैम आ रहा है। आ रहा है। तुम लोग अपना माइक म्यूट करना। आई थिंक से वोएम के पास से आवाज आ रही है, थिंक सो। ठीक है, सो अगर आवाज नहीं आती रहेगी तो अनम्यूट करके बोलना, आवाज नहीं आ रही है तो म्यूट ही रखना, और कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो म्यूट अनम्यूट अगेन वापस करके ऐसे मेरे को बताते जाओ। सो देन मैम इधर से सेंस आवाज नहीं आ रही। ऑर्गन, सो ओके, सेंस ऑर्गन जो है वो सेंड हम लोग पास करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, एंड देन आफ्टर पासिंग सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, टेक द डिसीजन अबाउट द एक्शन टू बी टेकन। मतलब क्या, हम लोग को फॉर एग्जांपल टंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टंग हम लोग क्या करते हैं, फूड का टेस्ट। तो फूड का टेस्ट कौन सा है, वो सॉल्ट है, उसमें सॉल्ट कितने अमाउंट में है, वो सब हम लोग चेक करते विद द हेल्प ऑफ टंग। तो जब हम लोग एनी काइंड ऑफ फूड वी ईट, ये पास होता है फटक से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाता है, तो बाद में फटक से विद इन सेकेंड एक डिसीजन होता है कि ये फूड का टेस्ट कैसा है, एंड इन दिस मैनर हम लोग फूड का टेस्ट समझता है। देन the information and take the decision about the action to be taken. The brain and the spinal cord form the, मैम आपका फिर से ब्रेक। फिर से ब्रेक हो रहा है। One minute, I will मैम रिजॉइन करो, रिजॉइन। हाँ यस वेट वेट, रिजॉइन करती हूँ मैं, फिर आवाज आएगा आई थिंक सो। यस मैम।